بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک تاریخی اولو انگیز ناول۔ ایپیسوڈ نمبر 5۔ سلطان محمود نے ابھی تک ملتان کے نواحی میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ ایک روز اپنے خیمے سے باہر کھلے میدان میں اپنے بڑے سالاروں میں سے عبداللہ قراتگین، احمد نیالکین، عبداللہ تائی، الکوان تاش اور دیگر سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایک چھوٹے سالار نے غزنی سے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع کی۔ ان الفاظ پر سلطان محمود غزنوی کسی قدر چونکا تھا اور اس نے قاصدوں کو فی الفور لانے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں قاصد آئے تب سلطان نے انہیں قریب بٹھایا، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم غزنی سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان دونوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ہم اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ آپ نے امیر ارسلان جاذب کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ واپس بھیجا تھا اور اس نے ہرات میں قیام کیا تھا۔ اب وہ ہرات سے نکل کر غزنی پہنچ گیا ہے۔ قاصدوں کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان ہرات سے نکل کر غزنی کیوں پہنچ گیا ہے؟ اس پر قاصد دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، ماوراء النہر کے حکمران ایالک خان نے ہمارے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ علیق خان نے اپنے سپہ سالار سیاؤش تکین کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر خراسان پر حملہ ور ہونے کے لیے بھیج دیا اور اپنے دوسرے سالار اور بھائی جعفر تکین کو، جس پر چغر تکین بھی کہتے ہیں، بلخ پر حملہ ور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ یہی جعفر تکین ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ بلخ پر حملہ ور ہوا اور سلطان محترم اس نے ہمارے شہر بلخ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جہاں تک ماوراء النہر کے حکمران علی خان کے سالار سیاؤش تکین کا تعلق ہے تو اس نے ان دنوں خراسان میں لوٹ مار مچا دی ہے۔ سلطان محترم، یہ صورتحال دیکھ کر ارسلان نے اندازہ لگایا کہ وہ اکیلا ان قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ ہرات سے غزنی پہنچ گیا ہے اور اسی نے پیغام دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر سن کر سلطان محمود پریشان نہیں ہوا۔ سلطان محمود نے داؤد کی توبہ کو غنیمت سمجھ کر اس کی التجا قبول کر لی اور سگپال یعنی نواسہ خان کو، جو ملتان کی متصل ریاست بھاٹیا کی حکومت پر مامور تھا، اسے حکم دیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں داؤد بن نظر کے فعال اور حرکات کا نگران بھی رہے اور اس پر گہری نگاہ رکھے کہ وہ اپنے پاس کرامتیوں کو جمع نہ ہونے دے۔ نواسہ خان کو محمود غزنوی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ داؤد بن نظر تائب ہو کر کراماتہ کا راستہ چھوڑ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ چنانچہ نواسہ خان کو اس پر نگران مقرر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھا۔ واپسی پر سلطان محمود کوہستان سلیمان کے کسی جنوبی درے سے گزرا اور اننگ پال کے علاقوں کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غزنی پہنچ کر سلطان محمود غزنوی نے ارسلان جاذب سے تمام حالات سن کر ایک زبردست لشکر مرتب کیا اور ان ہاتھیوں کو بھی ہمراہ لیا جو اس نے بچے رائے کی جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل کیے تھے۔ دوسری طرف ماوراء النہر کے حکمران علی خان کو جب خبر ہوئی کہ اس نے تو سلطان محمود غزنوی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور جواب میں سلطان محمود آندھی اور طوفان کی طرح ملتان سے اٹھ کر غزنی پہنچ گیا ہے اور اب وہ بلخ کی طرف کوچ کر رہا ہے، یہ خبر سن کر علی خان پریشان ہوا۔ چنانچہ اس نے سلطان محمود کے خلاف چین کے حکمران قدر خان کو بھی اپنا شریک بنانا چاہا۔ قدر خان اس کا سسر بھی تھا، چنانچہ علی خان نے تیز رفتار قاصد قدر خان کی طرف روانہ کیے اور اسے سلطان محمود کے خلاف مدد طلب کی۔ چنانچہ قدر خان بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف علی خان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ دوسری طرف سلطان محمود نے پہلے ارسلان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر علی خان کی سالار سیاؤش تکین پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا، جو خراسان میں تباہی مچا رہا تھا۔ چنانچہ ارسلان اس حملے آور ہوا اور اسے شکست دے کر مار بھگا کر واپس سلطان سے آ ملا تھا۔ اس طرح سلطان ایک بار پھر اپنے پورے لشکر کے ساتھ بلخ شہر کے باہر کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف ماوراء النہر کا حکمران علی خان اور چین کے علاقوں کا حکمران قدر خان دونوں اپنا لشکر لے کر سلطان کے سامنے بلخ کے نواح میں خیمہ زن ہوئے۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور حملہ ور ہونے کی ابتدا علی خان اور قدر خان دونوں نے کی تھی۔ پہلے انہوں نے بے خواب راتوں کی فضاؤں میں
सहराई बगोलों की तरह अंधेरों को उभरती खून की उगलती यूरिश की तरह नारे बुलंद किए। उसके बाद वो सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर सदियों की मुसाफतों की तरह टूट पड़े थे। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद ने भी बादलों से खाली नीले आसमान तले ओस चटाती जमीन पर करामात का कोई लम्हा खड़ा करते वक्त और जमाने की तरह अपने पूरे लश्कर के साथ अली खान और कदर खान पर टूट पड़ा था। बल्ख शहर के नवाह में दोनों लश्करों के यूं टकराने से नवाह गिरी के कोहराम पुरअशब चीखें सुनाई दे रही थी। हर लश्करी रक्स करके उठने वाली शाहों की मानिक मर्ग और जियत का खेल खेलना शुरू हो गया था। जमीन से निकलती अबलाओं ने दस्ते जबर के अज़म और अंधे खौफ नाकम तिलातिम 400 खड़े कर दिए थे। मावराउन नहर के हुक्मरान अली खान और चीन के हुक्मरान कदर खान ने अपनी तरफ से ठान रखी थी कि उनके लश्कर की तादाद चूंकि ज्यादा है, लिहाजा वो सुल्तान महमूद गजनवी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सुल्तान और उसके सालारों और लश्करियों ने उसे बेबाकी उस खौफनाकी से उन पर हमले किए कि अली खान और कदर खान दोनों को बदतरीन शिकस्त दी और उनका ताकुब शुरू कर दिया था। ये ताकुब बड़ा खतरनाक था और बड़ा शदीद और जोरदार था और सुल्तान ने अपने दोनों बड़े दुश्मनों यानी अली खान और कदर खान के लश्कर को बड़ी तेजी से काटते हुए उनकी तादाद कम करना शुरू कर दी थी। इस तरह खुरासान के हालात को सुल्तान ने बड़ी तेजी से अपने आहमी गिरफ्त में ले लिया था। अली खान जो सुल्तान के इलाकों पर कब्जा करने के दर पे था, उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा और सुल्तान ने उस पर ऐसी जर्ब लगाई कि आने वाले दौर में अली खान को सुल्तान के इलाकों पर इस तरह चढ़ दौड़ने और उनके इलाकों के अंदर यलगार तरकताज और तबाही का खेल खेलने की जरूरत और जसारत नहीं हुई। भाटिया यानी बहरा का हुक्मरान एक रोज भाटिया में अपने क़यामगाह में अकेला बैठा हुआ था कि उसका खुद्दाम में से एक उसके कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और फिर भाटिया के हुक्मरान नवासा खान को मुखातिब करके कहने लगा, आपके मामू अनंतपाल की तरफ से कोई शख्स कोई अहम पैगाम लेकर आया है और फिलफौर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। इन अल्फाज पर नवासा खान चौंका था, चुनांचे कहने लगा, जो भी मुझसे मिलने के लिए आया है उसे अंदर भेज दो। चुनांचे थोड़ी देर बाद ढहली हुई उम्र का एक शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ। नवासा खान ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। उसके बाद आने वाले को उसने अपने सामने बिठाया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मामू अनंतपाल ने खैरियत से तुम्हें मेरी तरफ भेजा है। इस पर आने वाला उस शख्स ने होठों पर जुबान फिरी और कहने लगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक इंतहाई अहम और राजदारी के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या ये कमरा जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं ऐसी गुफ्तगू के लिए मौजू है? जवाब में नवासा खान ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, ये कमरा महफूज है, जो कुछ तुम कहना चाहते हो कहो। इस पर वो शख्स नवासा खान को मुखातिब करके कहने लगा, आप इस वक्त भाटिया के हुक्मरान है, आपके तख्त एक खास बड़ा लश्कर है। आप जानते हैं इससे पहले आपका नाना जयपाल को 3 बार मुसलमानों के हाथों हजीमत उठाना पड़ी, 2 बार सुबुक्तगीन के हाथों, तीसरी और आखिरी बार महमूद गजनवी के हाथों, जिसके नतीजे में अपनी बीवी के साथ इस दुनिया से कूच कर गया। इसके बाद आपके मामू ने आपके नाना के इलाकों की हुक्मरानी संभाली। आपके मामू अनंतपाल ने भी अपने बाप का इंतकाम लेना चाहा, चुनांचे वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ दरिया सिंध के किनारे महमूद गजनवी से टकराया। लेकिन हालात की बदकिस्मती के दरिया सिंध के किनारे भी हमें नाकामी और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उस शिकस्त का नतीजा ये हुआ कि आपके मामू को भाग कर लाहौर का रुख करना पड़ा। महमूद गजनवी उसके पीछे था, जिसकी बिना पर अनंतपाल अपने दोनों बहनों और दूसरे अजीज और अकारीब के अलावा बचे कुछ लश्कर को लेकर कश्मीर की तरफ चला गया। महमूद गजनवी ने कुछ दूर तक ताकुब के आखिर उस ताकुब को तर्क करके वो मुल्तान पर चढ़ दौड़ा। इसी दौरान चूंकि खुरासान में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, लिहाजा वो खुरासान चला गया। अब जबकि उन दोनों महमूद बुरी तरह खुरासान में मसरूफ है, तो आपका मामू चाहता है कि आप महमूद गजनवी के खिलाफ बगावत और सरकशी खड़ी कर दे। आपका मामू हर सूरत में आपके बाप और अपनी शिकस्तों का इंतकाम महमूद गजनवी से लेना चाहता है और वो ये भी उम्मीद रखता है कि आप चूंकि इसके भांजे हैं, लिहाजा उस रिश्ते के हवाले से आप अपने मामू की मदद जरूर करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला वो शख्स रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, यहाँ तक आपके मामू अनंतपाल को खबर मिली है। इसके मुताबिक मुल्तान के नवाह से खुरासान की तरफ जाते हुए महमूद गजनवी ने आपको मुल्तान के इलाकों का निगरान भी मुकर्रर किया था और आपके जिम्मे ये भी काम लगा था कि आप मुल्तान के हकीम दाऊद बिन नजर पर निगाह रखेंगे और ये देखते रहेंगे कि उसकी जान से उसकी वजह से इन इलाकों में करामाती ज्यादा आबाद ना होने पाए और ना ही वो ताकत व कुव्वत पकड़ पाए। देखो, करामाती बड़ी जंगजू है, अगर आप उन्हें अपने साथ मिला लें और महमूद गजनवी के खिलाफ आप बगावत खड़ी करते हैं तो फिर मुल्तान का करामाती हुक्मरान जो जाहिरी तौर पर करामाती फिरके से ताइब हो चुका है,
वापस अपने अकीदे पर चला जाएगा और आपके साथ मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करेगा। उस शख्स के अल्फाज सुनकर नवासा खान गहरी सोचों में डूब गया था। फिर खौफ ज़दा से लहजे में कहने लगा, मैं समझता हूँ जो कुछ मेरा मामू चाहता है ये एक बड़ा खतरनाक खेल है। सुल्तान जब हमलावर होता है तो अपने शुरू के हमले से ही वो अपने मुकाबले के बदन को जख्म और चश्मे नजर को शिकस्त खुर्दा कर देता है। नवासा खान के इन अल्फाज के जवाब में शख्स कहने लगा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस बार आपका मामू बड़ी संजीदगी से हरकत में आया हुआ है और हर सूरत में महमूद से इंतकाम लेने की दर पे है। उसने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को खतूत लिखे कि वो अपने अपने लश्कर लाहौर भेजें ताकि सुल्तान महमूद को शिकस्त देकर उसे उसके इलाकों में महदूद कर दिया जाए। आपके मामू अनंतपाल ने हिंदुस्तान के राजाओं को यह भी तंबीह की है कि आज अगर वो मुसीबत में फंसा हुआ है और अकेला सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो कल यही सुल्तान महमूद उसके इलाकों पर कब्जा होने के बाद हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों की तरफ पेशकदमी करेगा और एक के बाद दूसरे राजा की गर्दन नापते हुए सबको अपने सामने जेर करके एक ऐसा फातेह की सूरत में सामने आएगा जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकेगा। तीसरा काम आपके मामू ने यह किया है कि हिंदुस्तान के सारे राजाओं को यह भी लिखा है कि अपने अपने इलाकों के पंडितों और वक्तों से कहिए कि वो जगह जगह घूम फिर कर सुल्तान महमूद के खिलाफ फिजा पैदा करे। और मेरे अजीज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार फतह हमारी शिकस्त महमूद की होगी, इसलिए कि आपके मामू की इस पुकार के जवाब में मुख्तलिफ राजाओं के लश्कर लाहौर में जमा होना शुरू हो चुके हैं। नवासा खान कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर कहने लगा, जो हालात तुमने बताए हैं इससे मुझे हौसला हुआ है, लिहाजा मैं अपने मामू की बात मानते हुए सुल्तान महमूद के खिलाफ इल्म बगावत खड़ा करता हूँ और साथ ही मैं मुर्तद होकर फिर हिंदू धर्म की तरफ आता हूँ। इस सिलसिले में करामातियों से भी राब्ता कायम करता हूँ। मुल्तान के हकीम दाऊद बिन नजर को भी अपने साथ मिलाता हूँ ताकि सुल्तान महमूद के खिलाफ हम आसानी से कामयाब हो जाएं। तुम ऐसा करो, 2 दिन एक मेहमान की हैसियत से हमारे पास क़याम करो और फिर मामू की तरफ रवाना होना और उसे बताना कि मैं उसका कहा मानते हुए सुल्तान के खिलाफ बगावत और सरकशी खड़ी कर चुका हूँ। वो शख्स नवासा खान की गुफ्तगू से खुश हो गया था, लिहाजा नवासा खान ने उसके क़याम को मद्देनजर कर दिया और 2 दिन बाद वो भाटिया यानी भीलवा से लाहौर की तरफ कूच कर गया था। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी खुरासान ही में उसके मुखबिरों और हर कारकुनों ने यह इत्तला कर दी थी कि नवासा खान ने सरकशी और बगावत खड़ी कर दी है। ये खबर मिलने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ पलटा। पहले गजनी में दाखिल हुआ, शायद वो अपने लश्कर को चंद दिन सुस्ताने और आराम करने का मौका देना चाहता था। उसके बाद वो हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहता था। जिस रोज सुल्तान महमूद गजनवी गजनी शहर में दाखिल हुआ तब अब्दुल्लाह करातगीन और अहमद नियालकिन दोनों गजनी के एक शुमाली मोहल्ले में दाखिल हुए। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़ों को हकाते चले जा रहे थे। इस मौके पर अब्दुल्लाह करातगीन अहमद नियालकिन को मुखातिब करके कहने लगा, अहमद, तुम मुझसे बड़े हो, बड़े भाई की जगह हो। बड़ा भाई बाप के मानिंद होता है। मैं चाहता हूँ मेरे और तुम्हारे खानदान के दरमियान जो रिश्ता तय है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब्दुल्लाह करातगीन के अल्फाज पर अहमद नियालकिन मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं तो खुद ये चाहता हूँ, घर चलते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में मजीद देर नहीं होनी चाहिए। दरअसल अब्दुल्लाह के बाप का नाम करातगीन था। उसका एक भाई था जिसका नाम संजर था और एक बहन थी जिसका नाम खीसार था। दूसरी तरफ अहमद के बाप का नाम नियालकिन था। भाई का नाम उस्मान और बहन का नाम अरजान था। नियालकिन जो अहमद का बाप था फौत हो चुका था। अहमद के भाई उस्मान की मगनी अब्दुल्लाह करातगीन की बहन खिसार से हो चुकी थी, जबकि अब्दुल्लाह करातगीन के भाई संजर की मगनी अहमद नियालकिन की बहन अरजान से तय थी। अहमद नियालकिन शादीशुदा था। उसकी बीवी का नाम बाशान था। अहमद नियालकिन के अब घर के 4 अफराद थे, एक अहमद नियालकिन और एक उसकी बीवी बाशान और एक उसका भाई उस्मान और चौथी उसकी बहन अरजान। जबकि अब्दुल्लाह करातगीन के घर के 4 अफराद थे, एक अब्दुल्लाह करातगीन खुद, दूसरा उसका भाई संजर, तीसरा उसका बाप करातगीन और चौथी उसकी बहन खिसार। चुनांचे इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एक जगह रुक गए। जिस जगह वो रुके थे वहां दोनों की हवेलियां थी। वो दोनों हवेलियां के साथ साथ थे। फिर करातगीन अपने घोड़े से उतर गया। उसकी तरफ देखते हुए नियालकिन भी उतर गया। फिर नियालकिन कहने लगा, अब्दुल्लाह करातगीन मेरे भाई, पहले दोनों घर जाते हैं। मेरे ख्याल में सुल्तान ज्यादा दिन यहाँ क़याम नहीं करेंगे। अगर सुल्तान का क़याम मुख्तसर हुआ तो फिर उस मामले को किसी अगले क़याम पर मौखिर कर देंगे और अगर सुल्तान ज्यादा दिन ठहरा तो फिर उन शादियों का एहतमाम कर देंगे। अहमद नियालकिन के अल्फाज पर अब्दुल्लाह करातगीन ने खुशी का इजहार किया था। फिर वो अपने अपने घरों में दाखिल होना चाहते थे कि अब्दुल्लाह करातगीन की हवेली का दरवाजा खुला और कई लोग उस हवेली से निकलकर बारी बारी उन दोनों से मिलने लगे।
मिलने वालों में अब्दुल्लाह करातगीन का बाप करातगीन, उसका भाई संजर, बहन खिसार, जबकि अब्दुल्लाह करातगीन की हवेली ही से अहमद नियालकिन का भाई उस्मान, उसकी बीवी बाशान और बहन अरजान निकले थे। शायद सब एक जगह अब्दुल्लाह करातगीन की हवेली में बैठे हुए थे। सब पुरजोश अंदाज में पहले अब्दुल्लाह करातगीन और अहमद नियालकिन से मिले। उसके बाद अब्दुल्लाह करातगीन का बाप करातगीन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में सब हमारे ही यहाँ आओ, यही बैठकर बातें करते हैं। फिर करातगीन अहमद नियालकिन को मुखातिब करके कहने लगा, बच्चे, हमें खबर हो चुकी है कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो चुके हैं, लिहाजा हम सब यही बैठकर तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। जब हम बाहर गली में बातें करने की आवाज सुनाई दी तब हमने अंदाजा लगाया कि तुम दोनों आ गए हो, लिहाजा हम भागे भागे बाहर आ गए। इस पर अहमद नियालकिन के भाई उस्मान ने आगे बढ़कर उसके घोड़े की बाग ली और कहने लगा, भाई आप अंदर आ जाइए, मैं घोड़े को अपनी हवेली में बांधने, उसे पानी पिलाने और चारा डालने के बाद यहाँ आ जाता हूँ। अहमद नियालकिन मान गया। चुनांचे उस्मान अहमद नियालकिन के घोड़े को लेकर अपनी हवेली में दाखिल हुआ। बाकी सभी लोग भी करातगीन की हवेली में दाखिल हुए। अब्दुल्लाह करातगीन का भाई संजर उसकी घोड़े की बाग पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गया था। सब दीवान खाने में बैठ गए। थोड़ी देर तक संजर और उस्मान भी घोड़ों को बांधकर वही दीवान खाने में आकर बैठ गए। पहले करातगीन के कहने पर अहमद और अब्दुल्लाह ने खुरासान के हालात और हिंदुस्तान में कार्रवाइयों की तफसील बताई। जब वो ये तफसील कह चुके तब गुफ्तगू का आगाज अहमद नियालकिन ने किया और अब्दुल्लाह के बाप करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा, घर की तरफ आते हुए मैंने और अब्दुल्लाह ने एक फैसला किया है, और वो ये कि संजर, उस्मान और अरजान और खिसार चारों की शादी का एहतमाम कर देना चाहिए। हमने मिलकर ये भी बात की है कि अगर सुल्तान ने इस बार गजनी में ज्यादा दिन क़याम किया तो इस काम को हम सर अंजाम देंगे, और अगर सुल्तान का क़याम मुख्तसर हुआ तो फिर किसी अगले क़याम के मौके पर इस काम से हम सरखुरू हो जाएंगे। अहमद नियालकिन जब खामोश हुआ तब करातगीन शिकवों भरी आवाज में अब्दुल्लाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्दुल्लाह, अहमद की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि तुमने इस मौजू पर बात की है। बेटे संजर और तुम्हारी बहन खिसार दोनों तुमसे छोटे हैं, पहले तुम्हारी शादी का एहतमाम किया जाएगा, इसके बाद संजर और खिसार से मुतालिक मैं सोचूंगा। करातगीन जब खामोश हुआ तो बड़ी इनकिसारी से उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्लाह कहने लगा, बाबा, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। बाबा, संजर ने कई बार मुझसे कहा कि मेरी तरह लश्कर में शामिल होना चाहता है, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इस तरह घर में आपकी और खिसार की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। बाबा, मैं शादी से इनकार तो नहीं कर रहा। जब कोई अच्छी और मुनासिब लड़की मेरी निगाह में आएगी तो बाबा, मैं खुद ही आपसे कहूंगा कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि अपनी शादी से पहले मैं संजर और खिसार दोनों बहन भाई की शादी का एहतमाम करूँ। ये मेरी दिली और इंतहाई ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ख्वाहिश को ठुकराएंगे नहीं। अब्दुल्लाह के अल्फाज के जवाब में करातगीन कहने लगा, बेटे, अहमद शादीशुदा है। इस तरह अगर तुम भी शादीशुदा होते तो जब और जिस वक्त तुम कहते संजर की शादी अरजान से और उस्मान की शादी खिसार से करने का एहतमाम कर देता। लेकिन बेटे, करातगीन की बात अब्दुल्लाह ने फिर काटते कहने लगा, मैंने कहा आप मेरे मुतालिक फिक्रमंद ना हो, पहले मेरे छोटे भाई और बहन की शादी होने जाए, उससे मुतालिक मुतमईन होने के बाद फिर मैं अपनी तरफ आऊंगा। मैंने कहा ना कि ये मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बाप मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा। अब्दुल्लाह करातगीन जब खामोश हुआ, पाशान बोल उठी और करातगीन को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, अगर अब्दुल्लाह की यही ख्वाहिश है तो हमें इसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। इस पर करातगीन कहने लगा, अब्दुल्लाह मेरे बेटे, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर यूं ही सही, मैं तेरे फैसले, तेरी ख्वाहिश को रद्द तो नहीं कर सकता। करातगीन के अल्फाज सुनकर अहमद नियालकिन, उसका भाई उस्मान, बहन अरजान, बीवी पाशान के अलावा अब्दुल्लाह का भाई संजर और बहन खिसार भी खुश हो गए थे। चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी ने चंद दिन तक शहर में क़याम किया। उन दोनों के दौरान संजर और अरजान, जबकि अहमद नियालकिन के भाई उस्मान और अब्दुल्लाह करातगीन के बहन खिसार की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। इसके बाद अब्दुल्लाह और अहमद दोनों सुल्तान के लश्कर के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच कर गए थे। मौरखीन लिखते हैं कि अली खान को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी को नवासे खान की सरकशी की खबर हो गई थी, लेकिन शुमाली इलाकों में अली खान को शिकस्त देने के बाद पहले वो गजनी आया। उसने नवासा खान को इंतहाई खुफिया अंदाज में शिकस्त देने और पकड़ने की तजवीज़ बनाई। चुनांचे बकौल मौरखीन वो खामोशी से गजनी से रवाना हुआ। उस वक्त नवासा खान हीरा के इलाके में मौजूद था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि गजनी से भीरिया तक 380 किलोमीटर सफ़र बनता है। रास्ते में दुश्वारग्रस्त पहाड़ियाँ, नदी नाले, दरिया टूची, दरिया सिंध और दरिया चहलम जैसी रुकावटें आती हैं, मगर सुल्तान महमूद ने हैरन कुन रफ्तार से पेशकदमी की। उसने मुख्तलिफ रास्तों से भीरा की तरफ हर अव्वल दस्ते भेजे। चुनांचे दुश्मन को सुल्तान की आमद की खबर उस वक्त हुई जब वो
भीरा के करीब पहुंच चुका था। नवासा खान ने भागने की कोशिश की। वो खिवड़ा की जानिब पहाड़ों की तरफ भागा मगर पकड़ा गया। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि जब उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसने एक बार फिर इस्लाम कबूल कर लिया और वफादार रहने का वादा किया। इसके बाद सुल्तान ने 4 लाख दिरहम ताउन वसूल किया। एक बार फिर महमूद ने नवासा खान को मफ्तूहा इलाकों का हाकिम मुकर्रर कर दिया और वापस गजनी चला गया। कुछ मौरखीन का यह भी ख्याल है कि नवासा खान को सुल्तान महमूद गजनवी पकड़कर अपने साथ गजनी ले गया और वहां उसे जंदान में डाल दिया। बहरहाल इस हमले की रफ्तार से सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर की पेशकदमी की रफ्तार का अंदाजा होता है। बर्क रफ्तारी और दुश्मन को हैरान करके लड़े बगैर ही हौसला पुस्त कर दे। चुनांचे सुल्तान महमूद ने नवासा खान को हर सिम से घेरे में ले लिया था और सुल्तान महमूद गजनवी के इसी इकदाम की वजह से हिंदुस्तान के लोग सुल्तान को नाकाबिल तस्खीर समझने लगे थे। उस जमाने में सैकड़ों मील दूर एक मकाम से कई लड़ाका दस्ते एक अहम मकाम को बर वक्त घेरे में लेने के लिए रवाना करना वाकई एक इंतहाई मुश्किल और हैरत अंगेज कारनामा था जो एक नहीं कई बार सुल्तान महमूद ने कर दिखाया। नवासा खान से निपटने के बाद अब उसके मामू अनंतपाल की बारी आई। अनंतपाल जो पहले सुल्तान महमूद गजनवी का खिराज गुजार और मुल्तान पर हमले के वक्त बागी होकर आइलानिया बरसरे मुखालिफत था, मुस्तहिक सजा ठहर चुका था। लेकिन चूंकि सुल्तान महमूद को तुर्किस्तान, खुरासान और अजरबैजान की तरफ से खतरात दरपेश थे और वो अनंतपाल के मुकाबले में शुमाली और मगरबी हरीफों को ज्यादा सख्त और अहम समझता था, लिहाजा उसने वक्ती तौर पर अनंतपाल को नजरअंदाज कर दिया। उसके मुतालिक जो उससे पहले फिरार के गार कुआर कर चुका था, चश्म पोशी और दरस गुजारी ही मुनासिब समझा। मगर हिंदुस्तान में मजहबी पेशवा पंडितों ने जो तहरीक शुरू की थी वो सुल्तान महमूद गजनवी की मज़कूरा लड़ाइयों के सबब इस तरह मुश्किल और तरक्की पजीर रही जैसे आग हवा के झोंकों से मुश्ताल हुआ करती थी। अनंतपाल अपनी गुज़िश्ता गुस्ताखियों और सरकशियों की वजह से बखूबी जानता था कि सुल्तान महमूद गजनवी जरूर उसे इंतकाम लेने के लिए पंजाब पर हमलावर होगा। उसके पास मथुरा, कनौज, सिंध, गुजरात की तरफ से बराबर हिम्मत अफजा खबरें पहुंच रही थी। चुनांचे उसने अब ज्यादा तामुल मुनासिब ना समझकर हिंदुस्तान भर के राजाओं के पास कासिद और वफूद भेजे और लिखा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने मुल्क की हिफाजत और सुल्तान महमूद की हिलाकत के लिए मुत्तफिका तौर पर मैदान में निकल आए और उस मुहिम को इख्तिताम तक पहुंचाएं। चुनांचे उन खतूत और सफीरों को हर जगह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तानी करम पर नंदना नाम का एक शहर था जहाँ का राजा अंदर भीम था और उसी राजा अंदर भीम ने सबसे पहला अपना एक लश्कर अनंतपाल की मदद के लिए रवाना किया। इसके अलावा गुजरात, जिसका मरकजी शहर अनहोल अजाह था, वहां के राजा प्रेमदेव ने भी एक खासा बड़ा लश्कर लाहौर रवाना किया। बीडहंड के राजा का नाम भी प्रेमदेव था। इससे चूंकि राजा जयपाल की गुज़िश्ता रिश्तेदारी भी तय हुई थी, वो बीडहंड के राजा जिसके बेटे के साथ राजा जयपाल की बेटी काशी कुमारी की सगाई हुई थी, वो तो अब्दुल्लाह करातगीन के हाथों इंफरादी मुकाबले में मारा गया था। लेकिन उसके बावजूद बीडहंड का राजा काशी कुमारी पर अपना हक समझता था और ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो अपने दूसरे बेटे के लिए काशी कुमारी को किसी न किसी तरह जरूर हासिल करेगा। बीडहंड के अलावा देहरादून के राजा रामदेव, सोनीपत के राजा दीपाल, हरिबर्न के राजा हिरोद, मथुरा के राजा गुलचंद्र ने भी अपने अपने लश्कर, खजाना और दूसरी जरूरत के अशिया अनंतपाल के पास रवाना किए। इसके अलावा असवा यानी फतेहपुर के राजा चंडेल, बंधील खंड का राजा चुगदराय वगैरह वगैरह सारे राजाओं ने मिलकर सुल्तान महमूद के खिलाफ मुत्तहद होकर उठ खड़े हुए थे ताकि महमूद गजनवी से उसके इलाके छीन कर अपने तसल्लुत में लाए। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इसके अलावा कनौज के राजा कुन्नूर राय, कलंजर के राजा नंद ने भी जबरदस्त साजो सामान और लश्कर रवाना की। मौर्य सज्जान राय ने कनौज के राजा कुन्नूर राय का नाम अपनी तारीख में कोराह लिखा है, जो गालिबन कुन्नूर राय की तस्गीर है। और इस तरह अजीन, कुलियार, अजमेर, दहली, थानसर, नगरकोट, कश्मीर के राजाओं ने भी अपने अपनी बिसात के मुताबिक अपने अपने लश्कर और अपने अपने खजानों का एक हिस्सा अनंतपाल की तरफ रवाना किया। और फिर मालोह के राजा मनज और मीट के राजा धर्मदत्त ने भी इमदाद दी और लश्कर रवाना की। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि लगभग हिंदुस्तान के 20 राजाओं ने सुल्तान महमूद के खिलाफ अनंतपाल की मदद के लिए लश्कर और खजाने रवाना किए। उन राजाओं के अलावा मौरखीन लिखते हैं कि और राजा जो छोटे बड़े थे वो भी शरीक हुए और बाकी सारे छोटे राजाओं को मिलाकर ये तादाद 20-25 तक ही महदूद नहीं रहती, बहुत ऊपर चली जाती है। बहरहाल गुजरात से बिहार तक, कश्मीर से कनौज तक के राजा महमूद के खिलाफ आइंदा जंग में अनंतपाल से मिल गए थे।
इस कदर राजाओं का एक आवाज पर मुत्तफिका लब्बैक कहना, लश्कर और नकदी रवाना करना और बास का खुद भी लश्कर के साथ रवाना होकर लाहौर पहुंचना और अनंतपाल के सिपाही सालारी में दाद शुजाअत देना कोई इत्तिफाकी और फौरी वाकया नहीं हो सकता था। उस जमाने में आमदोरफ्त के जराए बड़े महदूद थे, चुनांचे इस काम को सरंजाम देने और तमाम हिंद को जंग पर आमदा करने के लिए जरूर काफी वक्त और जबरदस्त कोशिश सर्फ करना पड़ी होगी। सल्तनतों और बादशाहों और राजाओं की रिकाबतें हर जमाने और हर मुल्क और हर इलाके में यकीनन रही है। गजनी की सल्तनत पर हमला करने और सुल्तान महमूद को नीचा दिखाने के लिए उन तमाम रुकावतों का फरामोश हो जाना और कलंदर, बंदेलखंड और गुजरात के लश्करियों का मुत्तहद होकर राजा अनंतपाल की मदद के लिए लाहौर पहुंचना हरगिज मामूली वाकया और इत्तिफाकी हादसा करार नहीं दिया जा सकता। इससे पहले अनंतपाल का बाप राजा जयपाल खुदकुशी करके अपना नाम कौमी शहीदों में शामिल कर चुका था, जिससे हिंदुस्तान भर में एक इनकलाब पैदा हुआ और मजहबी वाजों ने सियासी खिदमात अंजाम देने के लिए अपने मजहबी झगड़ों को इत्तिहाद और इत्तिफाक के सांचे में ढालकर तमाम हिंदुस्तान को अपनी वाजों और धुआंधार तकदीरों से मुश्तगल बना दिया था। ये काम किसी एक या चंद राजाओं के बस का ना था। हिंदुस्तान और तमाम एशियाई मुल्कों में इस किस्म के काम हमेशा मजहबी पेशवाही ने अंजाम दिए। गौतम बुद्ध ने मनु की कवानीन और कदीम ब्राह्मणों मजहब को पार पार करके उसकी धज्जियां हवा में उड़ा दी और चंद रोज के बाद बुद्ध मजहब की शहनशाही हिंदुस्तान में कायम हो गई थी। राजपूतों की कौम के बनाने और बुद्धों की हुकूमत को मिटाने की कोशिश भी मजहबी पेशवाओं यानी पंडितों ने ही शुरू की थी और इस काम में उनको कामयाबी हासिल हुई थी। जयपाल को लगातार शिकस्तों और फिर खुदकुशी ने इस जद्दोजहद, इस जदीद ब्राह्मणी मजहब के पंडितों और बुद्ध मत के पेशवाओं को बड़ी आसानी से उस मुस्लिम कश तहरीक के लिए मुत्तहद और मुत्तफिक कर दिया और इन मजहबी पेशवाओं के इत्तिफाक ने तमाम राजाओं को ही मुत्तफिक नहीं बनाया बल्कि आम रियाया में भी मजहबी जोश, कत्ल और खून रेजी के शौक का खुरूश पैदा कर दिया। ये बात महज तख़ील और मजमून आफरीन पर मबनी नहीं समझी जाए बल्कि इसके लिए नाकबिले तरदीद सबूत और ज़बरदस्त शहादतें मौजूद है। शायद किसी तारीखी मसला में मोरखिन का इस कदर अजीम शान इत्तिफाक मौजूद नहीं जिस कदर इस मसले में है कि इस लड़ाई में इमदाद पहुंचाने के लिए माओं ने अपने बेटों को और बीवियों ने अपने शोहरों को लड़ाई पर जाने और मरने मारने की तरगीब दी। खुशहाल और अमीर घरानों की औरतें ने अपने सोने चांदी के जेवर उतारकर मसारिफे जंग के लिए पेश कर दिए। गरीब औरतें और बीवियों ने सोत काट कर पैसे जमा किए और जंग को कामयाबी बनाने के लिए इस कौमी जंगी खजाने में शामिल किए। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि ये भी सोचने और गौर करने का मकाम है कि बर्रे सगीर तुल अर्ज में औरतों तक का ये जोश और इशारे सिवाय मजहबी पेशवाओं की कोशिश के और किसी तरह भी मुमकिन न था। इस तहरीक को कामयाब बनाने में कई साल सर्फ है क्योंकि एक दिन या एक दो महीने में आम लोगों को इस कदर मुश्तगल और आमदा है कत्ल नहीं किया जा सकता था। ये बातें सिर्फ मुसलमान मौरखीन ही नहीं लिखी बल्कि राजा शिव प्रसाद की गवाही को भी रद्द नहीं किया जा सकता जो अपनी तारीख नुमा में हिंदू औरतों की सूत काट कर जंग में मदद करने और अपने शोहरों और बेटों को लड़ाई में भेजने की तस्दीक करते हैं। मास्टर जी सी इलीन जिसके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि मुसलमानों से नाराज और एक तरह का मुतासिब मौरिख है, वो लिखता है कि राजा अनंतपाल ने जो एक बहादुर सिपाही था राजपूतों को अपनी मदद के लिए बुलाया। तमाम राजपूत राजा अपने अपने लश्कर को लेकर जमा हो गए। हिंदू औरतों ने अपने तिला जेवर उतार कर उस लिए गला डाले कि वो अपने उन भाइयों और खाउंदों की रुपये से मदद करे जो लड़ाई में शरीक हों। राजपूतों का लश्कर इस कदर जर्रार था कि बहुत दिनों तक सुल्तान महमूद के इस मुकाबला करने की जरूरत ना हुई। मौरखीन लिखते हैं हिंदुओं ने ऐसी हुब्बुल वतनी का इजहार किया जो आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था। सुल्तान महमूद ने इस खौफ से कि जुमला राजाओं ने सुबह मालूदा से लेकर ओद तक यकायक कर लिया था पेशावर में मोर्चा डाले और एक मरतबा उन मोर्चों में से बरामद होकर हमला किया तो सख्त जक उठाई। बहरहाल राजा अनंतपाल ने लाहौर में एक जबरदस्त और बेशुमार मुत्तहद लश्कर की एक अजीम शान तादाद के फराहम होने के बाद पेशावर की तरफ कूच किया। ये लश्कर जो पेशावर के मैदान में पहुंचा अगरचे हिंदुस्तान की पूरी कुव्वत कहा जा सकता था मगर लड़ाई में शरीक होकर सवाब हासिल करने वाले गुरोहों की आमद का सिलसिला बराबर जारी रहा था जिनको पंडित लोग शहरों और कस्बों से मुसलसल रवाना कर रहे थे।